A very good morning to all online and offline students. Dear students, last lecture we understood the syllabus of financial reporting under the new scheme. We understood predominantly your syllabus consists of Ind AS. You have in total 35 Ind AS, which we will cover by way of practical chapters as well as Ind AS. We started with understanding of Ind AS applicabilities, implementation, and framework. Under that, we have covered the first part of applicabilities to companies other than bank, insurance, and NBFCs. Phase 1, 1st April 2015, FY 15-16, voluntary basis. Then, based on conditions, FY 16-17, it would be for all listed to be listed having net worth of 500 crores or more, all unlisted having net worth of 500 crores or more, or parent, subsidiary, associate, and joint venture of any of the above. Phase 2, it would be 1st April 17, FY 17-18, applicable to all listed or in the process of getting listed. Story khatam, udhar net worth ka criteria nahi hai. All unlisted company having net worth of 250 crores up to 500, or we say less than 500. Parent, subsidiary, associate, blah, 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 blah of the above. Listed के अंदर you should be listed on recognized stock exchange, not on SME stock exchange. अब इसी के पर्सपेक्टिव से अपने को आगे कुछ डिस्कशन करना था. यस, companies listed on SME stock exchanges are not required to comply with Ind AS requirement. They may voluntarily apply Ind AS. Voluntarily apply कर सकते, उसके लिए हम नहीं रोक सकते. कंपनीज है, कंपनीज को वॉलेंटरी एप्लीकेशन से हम रोक नहीं सकते, वो फ्रीडम दिया हुआ है. यस, लेकिन उनको कंपल्सरीली Ind AS एप्लीकेबल नहीं होगा ये बोलते हुए कि तू एसएमई में भी तो लिस्टेड है. SME listing does not work under the condition provided. You should be listed on a proper recognized stock exchange, not on a SME exchange. Second, most important, once Ind AS are applicable, entity is required to follow Ind AS for all subsequent financial year, whether it is individual financial statement or whether it is consolidated financial statement. Now this is very important. एक बार Ind AS applicable हो गया तो उस साल से applicable करते जाओगे तो आगे तुम ये नहीं बोल सकता है कि यार बस हो गया, अब मजा नहीं आ रहा है, या दोस्त मैं अनलिस्टेड है, मेरा नेटवर्थ तभी 400 करोड़ था तो मेरे को एप्लीकेबल हो गया, अब मेरा नेटवर्थ वापस 100 करोड़ हो गया, लॉस पे लॉस लग गया है, तो अब तो 100 करोड़ हो गया, तो अब छोड़ Ind AS नहीं करता हूं, अब मैं AS आ जाता हूं. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड Ind AS में एंट्री है, एग्जिट नहीं है. एक बार अंदर घुस गए, बार अलाउड नहीं है. यस, तो मतलब एक बार कर दिया. सर मैंने अगर वॉलेंटरी मेरे मन से किया रहेगा तो सर क्या मैं मन से वापस बाहर आ सकता है? नहीं, वॉलेंटरी किया या मैंडेटरी किया, एक बार अप्लाई किया तो फिर हर साल अप्लाई करने का है. फिर उसके बाद तुम ये नहीं बोल सकता है मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो ना यार, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. बराबर. एंड इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसा नहीं कि खाली मैं मेरे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको तुम बोलते हो SFS या सेबी के लैंग्वेज में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, सिर्फ उस पे ही एप्लीकेबल होगा, उस पे भी एप्लीकेबल होगा, CFS पे भी एप्लीकेबल होगा. थर्ड, companies not covered by the above roadmap. बराबर है, पॉसिबल है, उनको कंडीशन अप्लाई नहीं होता है. मतलब कौन से कंपनीज होंगे इसके अंदर कौन से कंपनीज होंगे?
ऑल अनलिस्टेड और एसएमई वाला लिस्टेड कंपनीज जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, बराबर है, दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2016। उन लोग एएस फॉलो करेगा, मतलब जिसको इंड एएस नहीं उसको एएस है। Section 8 companies are not exempted from requirement of Ind AS. Now something very very interesting. Section 8 companies मतलब कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो वो कंपनी बोलेगा आई एम अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मैं तो चैरिटी, मैं तो दुनिया की भलाई के लिए निकला हूं, मेरे को किधर इंड एस एप्लीकेबल देता है? वो ते चौलबे ना, अगर तेरे को इंड एस अप्लाई हो गया तो तेरे को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Indian accounting standard which are notified under Companies Act. I hope you understand. In order to apply this, they need to be notified under Companies Act. So these are notified under Companies Act. They are only applicable for, क्या लिखा है? Applicable for corporates. कल जाके सोल ट्रेडर को नहीं बोलने का तेरे को इंड एस, पार्टनरशिप फर्म को नहीं बोलने का तेरे को इंड एस, उनको इंड एस अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज, विच मीन्स इफ यू आर अ नॉन कॉर्पोरेट, इफ यू आर अ, you need to follow accounting standard issued by ICAI। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। Ind AS cannot be applied by non-corporate entities even voluntarily, मतलब a partnership firm or maybe a cooperative society बोलेगा मेरे को मजा आ रहा है इंड एस में, इट फील्स लाइक आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो हमने सोचा हम भी तूफानी करते हैं और इंड से अप्लाई कर दिया। हाँ, हमको तो, हम कंपनीज तो है ही नहीं, लेकिन वॉलेंटरी तो हम कर सकते हैं, उनको वॉलेंटरी भी अलाउड नहीं है। इफ यू आर नॉन कॉर्पोरेट तुमको वॉलेंटरीली भी अलाउड नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय अ रिलेवेंट रेगुलेटर। आज के डेट में सेबी ने मैंडेट दिया है, मतलब मैंडेटरीली बोला है कि इंड एस एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल इनविट्स एंड ऑल रिट्स, ऑल इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स एज वेल एज ऑल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों को सेबी ने बोला है तुमको इंड एस एप्लीकेबल है। वैसा रेगुलेटर सामने से आके बोलेगा कि तेरे को एप्लीकेबल है तो देन इट बिकम्स एप्लीकेबल, अपने मन मर्जी से एप्लीकेबल नहीं होगा। The most interesting part, Ind AS implementation does not extend to fellow subsidiary and investor, does not extend to fellow subsidiary and investor। सर ये क्या है सर, ये समझा नहीं, बताता हूं। कल किसको लिया था? अशोक के साथ कौन था? दर्शन, चलो ठीक है। से A Limited has a subsidiary, D Limited has a subsidiary, D Limited, D Limited has subsidiary S Limited, has associate R Limited, has a joint venture, has a joint venture। क्या था? तुमको यार बड़ा याद रहता है, हाँ ये सब तुमको याद रहता है, ठीक है, ओके। हैड अ जॉइंट वेंचर पी लिमिटेड, बराबर है। नाउ लास्ट लेक्चर हमने जब बात किया था तो हमने बोला था ये जो डी लिमिटेड है इसका नेटवर्थ 600 करोड़ है, ये बात की थी हमने। और बिकॉज डी को इंड एस एप्लीकेबल हो रहा था, बाकी सबको हो रहा था,
ए को भी हो रहा था, एस को भी, क्योंकि डी का पेरेंट ए, डी का सब्सिडरी एस, डी का एसोसिएट आर, डी का जॉइंट वेंचर पी, सबको एप्लीकेबल हो रहा था। अब ये समझते हैं कि इसका नेटवर्थ 100 करोड़ ही है। कितना? 100। ए का नेटवर्थ 50 करोड़ है, एस का नेटवर्थ 5 करोड़ है। कोई टेंशन नहीं, बराबर। आर लिमिटेड का नेटवर्थ 550 करोड़ है। तो आर को एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? आर को नहीं होगा, तो मैं वही बोल रहा हूं, आर को एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? गुड। आर को एप्लीकेबल होगा कि नहीं? आर को एप्लीकेबल होगा। अब जब आर को एप्लीकेबल होगा तो हम कंडीशन कैसे पढ़ेंगे? आर एप्लीकेबल, आर के पेरेंट को एप्लीकेबल, आर का पेरेंट, हाँ डी आर का पेरेंट है, पप्पा बना देगा उसको, पेरेंट है नहीं। आर के एसोसिएट को, आर का कोई एसोसिएट है? नहीं है, नहीं। आर का जॉइंट वेंचर है, आर का कोई जॉइंट वेंचर? आर का होना चाहिए, कमिंग फ्रॉम आर, फ्लोइंग फ्रॉम आर, है? नहीं। आर का सब्सिडरी? नहीं। तो मतलब सिर्फ आर को एप्लीकेबल होगा, सिर्फ आर को एप्लीकेबल होगा। डी आर का इन्वेस्टर है, डी आर का, हाँ, इट डज नॉट अप्लाई टू इन्वेस्टर, डी को एप्लीकेबल नहीं है। मेरा एसोसिएट को एप्लीकेबल, उससे मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे एप्लीकेबल है तो मेरे एसोसिएट को एप्लीकेबल होगा। मुझे एप्लीकेबल है तो मेरे एसोसिएट को होगा, लेकिन मेरे एसोसिएट को एप्लीकेबल है तो मुझे एप्लीकेबल होगा, ऐसा जरूरी सॉरी नहीं होगा, अनलेस मैं कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, तो मतलब अगर आर को एप्लीकेबल है तो भी डी को एप्लीकेबल नहीं होगा, डी को एप्लीकेबल नहीं होगा। से ये जॉइंट वेंचर पी, उसका नेटवर्थ 300 करोड़ है, क्या पी को एप्लीकेबल होगा? होगा। अरे 1 अप्रैल 2017 से तो होगा ना, फेज 1 में नहीं होगा तो फेज 2 में तो होगा ना। फेज लिस्टेड अनलिस्टेड जान दे, 250 से ज्यादा है ना, कुछ भी होगा, होगा ही ना। हेलो, तो फेज 2 में हो जाएगा, तो पी को एप्लीकेबल हो गया कंडीशन के हिसाब से। अब पी के पेरेंट को होगा, है कोई पी का पेरेंट? नहीं। पी के एसोसिएट को होगा, है कोई पी का एसोसिएट? नहीं। पी के जॉइंट वेंचर को होगा, है कोई पी का जॉइंट वेंचर? नहीं। पी के सब्सिडरी को होगा, है कोई? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? हेलो, it does not extend to fellow subsidiaries, co-subsidiaries, it do not extend to investor, it do not extend to venturer, एक्सटेंशन होता नहीं है। अब इसमें स्पाइसी वाला पॉइंट बताओ, स्पाइसी वाला पॉइंट बताओ। हाँ, आर इंडेस फॉलो करेगा, पी भी इंडेस फॉलो करेगा। आर फॉलो करेगा 1 अप्रैल 2016 से, पी फॉलो करेगा 1 अप्रैल 2017 से, हाँ या ना? बाकी सब तो एएस वाले हैं, एएस करेंगे, हाँ या ना? अब नॉर्मल सिनेरियो में ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में डी अपना स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, कोई टेंशन नहीं। डी अपना सीएफएस बनाएगा, सीएफएस बनाएगा तो ये तो सीएफएस भी एएस से ही बनाएगा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा लगेगा सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से, वो डेटा भी एएस बेस्ड होना चाहिए। सब्सिडरी का तो एएस बेस्ड ही मिलेगा, लेकिन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का इंड एएस बेस्ड डेटा आ जाएगा, जबकि उसको लगेगा एएस बेस्ड डेटा। हेलो, तुम समझ रहा है? विच मीन्स देन डी हैज टू रिक्वेस्ट आर एंड पी टू प्रोवाइड AS based financial statement so that it can consolidate it on AS basis.
It can consolidate it on AS basis. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? हाँ, मतलब हालत खराब है ऐसे सिचुएशन में. हाँ, आर और पी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टर डी और वेंचरर डी, दे नीड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एएस, बट दे नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स टू डी एज पर एएस. ओनली देन वो एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा. काम बढ़िया ना? तुम्हारे लिए अच्छा कि खराब? अच्छा. इफ यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम बढ़ता है, is always acha. You are now not supposed to think from articleship perspective. Articleship is temporary. Being in the profession is permanent. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? हेलो. यस, तो बोला सर मतलब आर और पी को एडिशनल बर्डन. यस, आर और पी को एडिशनल बर्डन. देयर इज वन वे वो एडिशनल बर्डन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सर कौन सा वे? सर बताओ सर, हम भी करेंगे डिस्ट्रॉय. कौन सा वे? टेल ADNS to voluntarily apply Ind AS. तुम समझ रहा है? यस, तो लेट देम वॉलंटरली अप्लाई Ind AS, देन वो बर्डन कम हो जाएगा, अदरवाइज वो बर्डन रहेगा. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? कोई टेंशन? अब दूसरा एग्जांपल लेते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में अपने को लोग भी कॉम्प्लेक्स वाले चाहिए. हमें ऐसे लोग चाहिए जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन करते रहते हैं. है कोई भाई भाई है तेरा? डू यू हैव अ ब्रदर? है? ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर. बैठ के बोल रहे बाबा? जहां से तू आया है वहां से मेन सोर्स. बी लिमिटेड. कितने, 2 जन आए हैं या 3-4 जन है? 3-4 है. चलो 3 ले लेते अपन. एक तू, एच ना, जी. वेरी गुड. तेरे से आगे बढ़ते हैं. तेरे बता. ए लिमिटेड. हाँ, ऐसे ही बता रहा तू कि है? अच्छा है. आई लिमिटेड. ओके. ये 3 में सबसे ज्यादा कौन सा वाला है? अच्छा, ऐसा है. ठीक है, एक को अपन सब्सिडरी बना देते, एक को अपन एसोसिएट बना देते, एक को जॉइंट वेंचर. बराबर है. बी का 3 सब्सिडरी. कितना सब्सिडरी? 3 सब्सिडरी. बराबर. बड़ा भाई है, बाजू वाला बड़ा भाई है. थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किया है, इससे भी कॉम्प्लेक्स कर सकता है, लेकिन फिर तुमको देख के थोड़ा सा है ना दया माया आ गया. हाँ. सो बी लिमिटेड हैज 3 सब्सिडरीज. कितना? HGP. बराबर. H लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी A, has a associate D, has a joint venture I. G limited has subsidiary X, associate Y. P limited is as it is. बराबर. Now all these companies are unlisted companies. हाँ, किसी का भी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, except H. H has a net worth of 260 crores. बाकी किसी का 100 करोड़ के ऊपर नहीं है. तो अगर H का नेटवर्थ 260 करोड़ है, कहना इसे फेज 2 में एप्लीकेबल हो जाएगा. फेज 2 का स्टार्टिंग पॉइंट. अब अगर H को इंड एस एप्लीकेबल है तो उसके पेरेंट हो जाएगा, A को हो जाएगा,
डी को हो जाएगा, आई को हो जाएगा, क्या जी को होगा? वर्डिंग लिखा है पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर ऑफ द अबाव। ऑफ द अबाव मतलब जिसको कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तुम इसको ऐसा एक्सटेंड नहीं कर सकता है, सर बी को इंड एस है तो सर बी का सब्सिडरी जी है उसको भी आ जाएगा, बी का सब्सिडरी पी है। अरे बी को इंड एस एप्लीकेबल नॉट बिकॉज ऑफ कंडीशन है, वो तो बी का एक बच्चू भरा आगे निकल गया, 260 करोड़ का नेटवर्क मार दिया, इसलिए उसको एप्लीकेबल है। वर्ड्स यूज आर पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर ऑफ अबाव। अबाव मतलब जिसने ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्या बी ने कंडीशन सेटिस्फाई किया है? नहीं, तो फिर उसके सब्सिडरी को हम ले, मतलब जी को एप्लीकेबल, पी को नहीं, अभी जी को ही नहीं है। हाँ, मतलब ये लोग सब क्या बनाएंगे? अब बाकी तो ठीक है, लेकिन बड़ी तकलीफ कब आएगी? जब बी सी एफ एस बनाएगा, वो तो इंडेस से बनाएगा, उसको एच और आगे वाला डेटा सब इंडेस से मिलेगा, लेकिन जी और उसके बाद आगे वाला डेटा ए एस वाला मिलेगा, पी और बाकी वाला डेटा ए एस वाला मिलेगा। ये तो सी एफ एस बन नहीं सकता। तो क्या बोलेगा जी और पी को कि भाई तुम लोग इंडेस बेस्ड डेटा मेरे को भेजो। तो जी एन पी के पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन एएस करने का और इंडेस वाला भी प्रिपेयर करके कंसोलिडेशन पर्पस के लिए देने का। दैट इज ऑप्शन नंबर टू, वॉलेंटरीली कम टू इंडेस। सी एएस भी करने का और इंडेस वाला डेटा भी देने का तो दो कॉस्ट हो जाता है, तो वॉलेंटरीली इंडेस में आ जा तो एक ही कॉस्ट में सब कुछ खत्म। कॉन्सेप्ट समझता है? कोई टेंशन इधर? पक्का? ओके। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन? आगे बढ़े। अच्छा, आप लोगों के ग्रुप पे कुछ लिंक मिल गया क्या? देखा पूरा डेटाबेस उधर है? बाकी तो तुम समझदार हो। ए यार, नाउ वी गो टू नेक्स्ट फेज फॉर एनबीएफसीज। फॉर एनबीएफसीज, बराबर है, एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल होगा ये। सर लेकिन तो फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड एनबीएफसी बोला, उसमें से हम एनबीएफसी देख रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या लिखा है? deferred by RBI till further notice। फॉर इंश्योरेंस कंपनी भी फिलहाल इट इज, क्या है फिलहाल इट इज? फिलहाल इट इज डेफर्ड। आने वाला था लेकिन IRDA ने उसको होल्ड पे रखा है। क्या रखा है? होल्ड पे, बोला रुक जाओ, तुम रुक ही जाओ, इंश्योरेंस है, रुक जाओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंश्योरेंस कंपनीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर इंड एस। यस, इसलिए रुक जाओ बोला है, बोला करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक के लिए फिलहाल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू
एनबीएफसीज। अब एनबीएफसीज के लिए फर्स्ट फेज कहां से स्टार्ट होता है देखो, 1 अप्रैल 2018। अच्छी वाली चीज ध्यान में ये रखनी है कि इधर वॉलेंटरी एडॉप्शन दिया ही नहीं है, इधर मैंडेटरी एडॉप्शन है विथ कंडीशंस। यस, 1 अप्रैल 18 मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19, करंट ईयर वुड बी 31 मार्च 19, प्रीवियस ईयर वुड बी 31 मार्च 18। देखो क्या लिखा है, एनबीएफसीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग, इस सर ये तो सेम टू सेम कंपनीज वाला है, कंपनीज में भी यही था ना, listed in the process of getting listed or unlisted but net worth should be 500 crores or more, सेम टू सेम है। हाँ सेम टू सेम है। और फिर क्या लिखा देखो, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज ऑफ अबाव एनबीएफसीज। क्या लिखा है ये, other than those already covered under corporate रोड मैप। सर ये क्या मतलब, समझाता हूं। फिलहाल के लिए कहना है इसे, जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया उसको छोड़ के बाकी लॉजिक सेम एज कंपनीज वाला ही है, खाली डेट का फर्क है, बाकी लॉजिक इज सेम। फेज 2 में क्या लिखा है, फेज 2 में 1 अप्रैल 19 से, सो इट वुड बी FY 1920। हाँ इस बार क्या लिखा है बोलो, listed or to be listed having net worth, अरे यार, listed या to be listed having net worth less than, अभी खाली इतना ही बोल दिया होता, listed या to be listed कंपनी, सब आ गया ना उसके अंदर। हाँ 500 या उसके ऊपर फेज 1 में है, लेस देन 500 फेज 2 में, इसका मतलब फेज 2 में सारे लिस्टेड या टू बी लिस्टेड एनबीएफसीज आ जाएंगे, सेम एज कंपनीज वाले केस में। फिर क्या लिखा है, अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 crores और मोर बट लेस देन, सेम टू सेम, कुछ अलग है क्या, अगेन क्या बोला है, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एंड एसोसिएट कंपनीज ऑफ अबाउ। अगेन वो अदर देन वाला है, वो हम बाद में बात करेंगे। कोई टेंशन, इजी, खाली डेट याद रखने का, एनबीएफसी का फेज 1 चालू होता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, फेज 2 चालू होता है 19-20 से, बाकी ऑल लॉजिक इज वन एंड द सेम एज ऑफ कंपनीज। तो नया कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं, ये समझ में आता है। अब एनबीएफसी के रिलेटेड ये जो बैंकिंग का बोला था ना, इंश्योरेंस कंपनी का बोला था, वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा नहीं है देखो, इसलिए ये शीट के अंदर ऑलरेडी कलरफुल प्रिंटिंग के साथ, इट इज डेफर्ड इनडेफिनेटली, बराबर। अब सवाल उठता है इसमें अदर पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है। अगेन लाइक कंपनीज इट इज एप्लीकेबल टू CFS एज वेल एज SFS, बराबर। NBFCs having net worth below 250 crore shall not apply, बराबर ना, जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है उन लोग इंड AS अप्लाई नहीं होगा। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड NBFCs। यस, adoption of Ind AS is allowed only when required as per रोड मैप के हिसाब से ही है, उसके पहले करने का नहीं। वॉलेंट्री एडॉप्शन ऑफ Ind AS is नॉट अलाउड, मतलब एनबीएफसी कैन नॉट से कि मेरा मन हुआ, वॉलेंट्री वाला तो तेरे को कंडीशन दिया ही नहीं है तो मन कहां से होगा, और होगा भी तो वॉलेंट्री कर नहीं सकता। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ
NBFCs. Accordingly, core investment companies are regarded as NBFC for the purpose of roadmap and implementation of Ind AS. So if somebody says ये NBFC नहीं, ये तो हमारा core investment companies है, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनके ग्रुप स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर कुछ सब्सिडरीज या कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, तो बोलता है ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ये भी एनबीएफसी के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं और उनको यही रोड मैप एप्लीकेबल होना चाहिए, irrespective of fact that RBI may have given some exemption to certain class of core in आरबीआई ने किसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को कुछ एग्जेम्पशन दिया, दैट डज नॉट मीन वो एनबीएफसी नहीं माना जाएगा, वो एनबीएफसी माना जाएगा. Company cannot adopt IFRS as substitution for Ind AS. Now this is general point. Sir, general point मतलब सबके लिए applicable, whether for companies or for NBFCs. It is applicable for everybody. सर ये ऐसा क्यों बोला सर, कंपनी cannot adopt IFRS as substitution of Ind AS? सर कोई ऐसा करेगा भी क्यों, कोई ऐसा करेगा भी क्यों, पॉसिबल है सर, क्यों सर बताओ. लेट्स से वी हैव वन कंपनी which is in UK, which is a parent company of a subsidiary in India. Subsidiary in India has a net worth of 100 crores only. So subsidiary in India is following AS. UK wala company, parent company will be following IFRS. Subsidiary in India would be preparing IFRS based statement so that UK wala parent company can consolidate. तो सब्सिडरी इन इंडिया दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक एएस बेस्ड जो इंडिया में लगेगा और दूसरा आईएफआरएस बेस्ड जो उसके पेरेंट को लगेगा. अब मान लो ये सब्सिडरी इन इंडिया का नेटवर्थ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ रुपए पहुंच गया, इवन दो अनलिस्टेड है लेकिन 300 करोड़ रुपए पहुंच गया, तो अब उसको इंड एएस एप्लीकेबल हो जाएगा. अब उसको इंड एएस एप्लीकेबल हो जाएगा तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अब उसको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा. नाउ दिस सब्सिडरी कैन नॉट से ए सुन, मैं आईएफआरएस तो वैसे भी बनाता ही था, तो ये जो मैं आईएफआरएस बना रहा है इसी को मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं एज सब्स्टिट्यूशन टू इंड एएस. कंपनीज एक्ट बोलता है चौलबे ना, चौलबे ना मतलब चलेगा नहीं. यस, तुमको इंड एएस ही फॉलो करना पड़ेगा. तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंड एएस ही फॉलो करना पड़ेगा. और तुमको पता है आईएफआरएस और इंड एएस के बीच में आज भी कार्व आउट्स है, याद है, डिफरेंसेस. हाँ कल ही बताया था. हेलो, और वो डिफरेंसेस को हम दो नाम से बुलाते हैं, एक बोलते हैं कार्व आउट्स और दूसरे बोलते हैं कार्व आउट्स. मतलब आईएफआरएस में है हमने ट्रिम कर दिया, कार्व इन मतलब हमने ऐड किया है, बराबर. बहुत ज्यादा कार्विन्स और बहुत कम कार्व आउट्स है, उल्टा है ना, समझ रहा है ना. हेलो, कार्विन तो एक ही है, बाकी सब कार्व आउट्स. समझता है इतना ऑल ऑफ यू? पक्का? अब एक गूगली डालू? हाँ दे सोचते. कितने हैं तेरे ध्यान में? एक है. अच्छा, थोड़ा फ्रिक्शन ऐड करते हैं, थोड़ा फ्रिक्शन ऐड करते हैं. हाँ एम ले लेते हैं, चलो कोई नहीं. एनबीएफसीएस, आप प्लीज इसको भी बंद करो ना प्लीज. थैंक यू.
NBFCS 80% stake in चलो हो गया। ये बंद है, अभी कुछ मत कर। हाँ ना, और ये बंद हो गया, अभी मस्त है। हाँ, सो एस लिमिटेड एमबीएफसी, दो सब्सिडरी, 80% एन लिमिटेड, 75% एम लिमिटेड, बराबर है। अब मान लो एस और एम का नेटवर्थ, दे आर ऑल थ्री आर अनलिस्टेड कंपनीज। एस और एम का जो नेटवर्क है, सॉरी, नेटवर्थ है, यस, एस और एम का ये नेटवर्थ है 50 करोड़ ईच। एन का नेटवर्थ है 270 करोड़। अब एन इज अ सर्विस कंपनी, इट इज नॉट एन एनबीएफसी. Since it is a service company, it's a normal company. Since it's a normal company, 270 crores unlisted, 1 अप्रैल 17 को इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 अप्रैल 17 को इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब रूल क्या है? अगर मेरे को एप्लीकेबल होता तो मेरे पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन इधर एस को नहीं होगा क्योंकि एस एनबीएफसी है। एस कौन है? वो अपने हिसाब से ही चलेगा, वो अपने हिसाब से ही चलेगा, वो एएस ही फॉलो करेगा। मतलब एन को ड्यूअल काम करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए इंड एएस और कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एएस। समझ रहे हैं? अच्छा, सेकेंड थिंग, सर आप ये जो नेटवर्थ बोलते हो, ये नेटवर्थ ढूंढने का कैसे? नेटवर्थ ढूंढने को आता है? हाँ बोलो, आता है तो बोलो, लेट्स सी। हाँ बोलो, बोलो। क्या बात, सही। कौन था ये? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कौन था? अच्छा, ओके। और कोई है? हाँ, उसमें क्या, अपने को अपना खाली थॉट्स ही तो देना है, करेक्ट इनकरेक्ट जाने दो ना। हाँ बोलो, और कोई? कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, वाओ। सेम, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले वाला मतलब। हाँ, हाँ, चलो, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कुछ तो बोला, एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि आपका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। Net worth is defined under Companies Act 2013. Net worth means paid up share capital. All reserves created out of profit, but does not include reserves created out of revaluation of assets, nor reserves created in the process of amalgamation. To that we will add securities premium. We subtract accumulated losses and we deduct deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off. This is the definition of term net worth. This net worth is based on
बैलेंस शीट फॉर्मेट ऑफ एएस, बिकॉज कंपनी तभी एएस ही फॉलो करती होगी, उसके बाद ही तो इंड एस पे जाएगी। समझ रहा है? सो ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व नहीं, एफएम नहीं है, इंड एस एप्लीकेबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट है, सो डेफिनेशन विल कम अंडर कंपनीज एक्ट। समझ रहा है ये? हाँ, मतलब तुमको तो एक्चुअली मैंने तुमको फॉर्मूला जैसा बना के दे दिया है, बैलेंस शीट से फिगर लेके डेटा डालने का, नेटवर्थ विल पॉप अप। हेलो? अब क्वेश्चन ही आता है कि सर हम तो 2023-24 में है सर, वो कंडीशन तो 1 अप्रैल 16 17, फिर एनबीएफसी इसका 19, ये सब तो सर निकल गया, अब तो 22-23 है। तो सर अब तो सबका एप्लीकेबिलिटी हो ही गया ना सर, तो अब तो हम वैसे भी एप्लीकेबिलिटी चेक नहीं करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में इंडेस है तो करंट ईयर में भी इंडेस होगा ही ना सर, तो वो तो चेक करते नहीं है। तो जिसको जिसको आना था वो सब तो एप्लीकेबल हो गया, तो अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी है, क्योंकि हो सकता है अब तक जिस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था शायद अब हो जाए। सर अब कैसे हो जाएगा? सर अब कैसे हो जाएगा? अब ऐसे हो जाएगा कि उसका नेटवर्थ सालों से 50 करोड़ ही था। 2023-24 में, 2023-24 में 290 करोड़ हो गया। तो हुआ ही 2023-24 में। तो स्टैंडर्ड ने कैसा बात किया है कि भाई मैंने जो एप्लीकेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर दिया था उसके पहले वाले सालों में कंपनी को चेक करके अप्लाई करना था, उसके पहले वाले सालों में चेक करके अप्लाई करना था। बराबर है? अब वो पीरियड निकल गया, तो अब क्या बोलता है? अब जिस किसी फाइनेंशियल ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, जिस किसी फाइनेंशियल ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उसके नेक्स्ट ईयर से इंड एस एप्लीकेबल होगा। उसके उस साल से तो कैसे बोल सकते हो ना, 290 करोड़ 23-24 में तुमको मिलेगा भी 31 मार्च 24 को, वो तो साल खत्म होने के बाद ही मिलेगा ना। फिर तुम बोलेगा अभी ये साल पूरा एस किया था ना, अभी घुमा डाल इंड एस कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जिस साल में वो नेटवर्थ क्राइटेरिया अभी छोटे छोटे कंपनीज का, अभी जिस साल में वो नेटवर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, क्या होगा नेटवर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई? 250 करोड़ से ज्यादा होगा या ये लिस्टेड बन जाएगा। इधर वेज, इधर वेज उनको इंड एस एप्लीकेबल होगा फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जो लिस्टेड होने वाला है उसको तो सेबी के हिसाब से इंड एस बेस्ड ही बनाना पड़ेगा, उधर सेबी का प्रोसेस लग जाएगा। बराबर है? यस। जो अनलिस्टेड है, आज तक नेटवर्थ नहीं था, उसका इस साल में आके नेटवर्थ बना है, उसको नेक्स्ट ईयर से, कब से, कब से, कब से, नेक्स्ट ईयर से इंड एस एप्लीकेबल हो। ये समझता है? हेलो? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, खाली ध्यान में रखो। अच्छे से तो अभी भी नहीं समझोगे, लेकिन ध्यान में रखो। सिर्फ बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है। मैं बहुत सारी चीजें ना इनिशियली तुमको सब बता दूंगा, देख ऐसा होता है, फिर जब वो आएगा तो वापस बोलूंगा, देख बोला था होता है, इधर देख समझ अब इसको। हाँ, जिस किसी को भी इंड एस फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होता है, कौन से टाइम? फर्स्ट टाइम। अपने वाले एग्जांपल में 23-24 में इसको एप्लीकेबल 290 करोड़ हो गया, तो इसको फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल कब से होगा? 24-25, 31 मार्च 25 उसका करंट ईयर होगा, 31 मार्च 24 उसका प्रीवियस ईयर होगा। करंट ईयर में तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, यस और नो? अब मैं बताता हूं, बड़ी मजे वाली बात है। जो कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया सप्लाई करती है ना, कितना टाइम, कितना टाइम, कितना टाइम, वो 3 बैलेंस शीट्स बनाती है और प्रेजेंट करती है। कितनी बैलेंस शीट? करंट ईयर, बराबर, प्रीवियस ईयर,
ये तो बराबर है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो बराबर है, ये तो समझता भी था, हाँ या ना? एंड बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कितने बैलेंस शीट बनते हैं? फर्स्ट टाइम जब भी बनाएगा तब कितने बैलेंस शीट बनते हैं? 3। करंट, प्रीवियस, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस। और ये तीनों इंडेस बेस्ड होता है। तीनों, 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 तीनों। मतलब ऐसा तुम देखोगे तो आईएफआरएस ने पूरी तरह ठोक दिया है कि तू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जाएगा, तेरे को लगेगा एक ही साल के लिए मेहनत है, फिर थोड़ी देर के बाद लगेगा अच्छा कंपैरेटिव है तो 2 साल के लिए मेहनत है, फिर थोड़े टाइम के बाद मालूम पड़ेगा 2 नहीं 3 साल का मेहनत है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? कितना बैलेंस शीट? कब बनाओगे? फर्स्ट टाइम बनाओगे तब। ये इन डिटेल किधर आएगा? इन डिटेल किधर आएगा? जब हम इंड एस 101 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। स्टैंडर्ड का नाम ही है फर्स्ट टाइम, कि पहली बार जब तुम करता है तो क्या क्या करने का। इतना समझता है? हेलो? अच्छा, मैं इतनी बार बोला है मैंने वर्ड, इतनी बार वर्ड बोला है फिनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर ना? हाँ, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? हाउ डू यू अंडरस्टैंड टर्म फिनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ बोलो। एंड रेशियोस, नोट्स टू अकाउंट्स का ही पार्ट है वो। क्या बोल रहे? हाँ, नहीं नहीं, एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए ना, मीनिंग तो बाद में है, पहले एग्जाम्पल तो समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है? क्या क्या होता है? अच्छा, वो भी शानी तेरे को ही पूछ रही है क्या बोल रही है? अरे वाह! आह, वो नोट्स का ही पार्ट होता है मालूम है? नोट्स का ही पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम एएस कर रहे थे तब होता था बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। जब तुम इंड एएस कर रहे हो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कुछ बढ़ गया? क्या बढ़ गया? किसी ने देखा है कभी ये स्टेटमेंट? कितने लोगों ने देखा है? एक दो, दो लोगों ने, 3 लोगों ने देखा है। 3 लोगों ने देखा है, बाकी बोलता है सर क्या बोल रहा है, हम तो अभी भी एस वाले ही बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? इट इज द न्यू एडिशन रिक्वायर्ड फॉर इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। न्यू एडिशन रिक्वायर्ड फॉर इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज के बाद तुमको कोई भी बोलेगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स और नोट्स टू अबाउट। हाँ सर, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता। पहले मेरे को बताओ इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? वाह, सही है। इक्विटी मतलब सिंपल टर्म में शेयर होल्डर फंड ना, विच विल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल
रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मे बी सम अदर आइटम्स, अभी ऐसा समझो। यस, ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट स्टैंडर्ड बोलता है डोंट एक्सपेक्ट शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हारे हर एक रिजर्व्स के नोट में जाके देखेगा बढ़ गया, कैसे बढ़ा, क्या हुआ, ये कम हो गया, क्या हो गया, कैसे कम हो गया। ये सब हो सकता है बड़े बड़े कंपनीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही यूज हो। तो 3-4 पेज का तो नोट्स टू अकाउंट्स खाली रिजर्व्स एंड सरप्लस का होता है। तो भाई इधर से उधर ढूंढते रहेगा क्या हुआ, कैसे हो गया। बोलता है शेयर होल्डर है, उसका इंटरेस्ट यही होता है कि इक्विटी में क्या हुआ है, बढ़ा है तो किस रीजन से बढ़ा है, कम हुआ है तो किस रीजन से कम हुआ है। तो तुम उसको इस इक्विटी का एक स्टेटमेंट बना के दो कि देखो लास्ट ईयर तक ये था, तो करंट ईयर का ये ओपनिंग है, करंट ईयर में ये सब ट्रांजैक्शंस हुए इक्विटी रिलेटेड। यस, उसमें कुछ प्लस हुआ, कुछ माइनस हुआ, और ईयर एंड पे ये क्लोजिंग है। तो एक स्टेटमेंट में मुझे पूरा शेयर होल्डर फंड दिख जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? हेलो? अच्छा, ये सब अपने को प्रिपेयर करना है एज पर शेड्यूल 3 format which has three division, which has three division, division 1, 2, 3, उसको ABC करके भी बोलते हैं। हाँ, division 1 AS format, division 2 Ind AS format companies, division 3 Ind AS format NBFCs। हाँ, लॉजिकली ये दोनों तुम्हारे काम का है, लॉजिकली। लेकिन एज फार एज तुम्हारा सिलेबस इज कंसर्न एंड रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, दिस इज द फोकस। कंपनीज, एनबीएफसी बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस। यस, कंपनीज इन जनरल सबको एप्लीकेबल होगा। सो हम इस पे फोकस करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। शेड्यूल 2 डिवीजन B इंड AS फॉर्मेट। बैठ रहा दिमाग में कॉन्सेप्ट? हेलो? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड AS कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो नोट्स। बराबर? क्या लिखा देखो, कंप्लायंस विद इंड AS एंड कंपनीज है, क्या लिखा है? कभी क्या लिखा है, जब कभी भी इंड AS और कंपनीज एक्ट के बीच में फाइटिंग होएगा, क्या होएगा? फाइटिंग। इंड AS बोलता है ऐसा करो, कंपनीज एक्ट बोलेगा वैसा करो, कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल। व्हाट विल प्रिवेल? व्हाट विल प्रिवेल? Companies Act will prevail. However, whenever there is a conflict between Ind AS and Schedule 3, conflict between Ind AS and Schedule 3, Ind AS will prevail. क्या प्रिवेल होएगा? तो Schedule 3 के साथ कुछ भी फाइटिंग होता है इंड एएस का, किसको इंपॉर्टेंस देने का? इंड एएस को। क्लियर विद दिस? हेलो? ओके, अब there are some questions we have applicability related, so shall we solve them? Yes, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, will the following companies with negative net worth, कौन सा नेटवर्थ, will need to comply with Ind AS? Company A listed having a negative net worth of 600 crores। खाली yes no नहीं लिखना है। Company B unlisted having a negative net worth of 300 crores। कंपनीज बोला है, एनबीएफसीज नहीं बोला है, तब तक मैं कंपनीज ही मानेगा, मैं एनबीएफसीज मानेगा नहीं। बोलो।
कैन आई से, तुम्हारा कंपनीज के केस में एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2015 से वॉलेंटरी है, 1 अप्रैल 2016 से 500 करोड़ या ज्यादा वाला है, 1 अप्रैल 2017 से लिस्टेड सब आ जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। तो मतलब कंपनी ये लिस्टेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, 1 अप्रैल 2017 से उसको एप्लीकेबल होगा। अनलिस्टेड वही आता है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड लेस देन 500 करोड़ है, क्योंकि नहीं तो ऊपर वाले में चला जाता था। बी अनलिस्टेड है, नेगेटिव नेटवर्थ है मतलब 250 से कम ही है, तो उसको एएसई एप्लीकेबल है, उसको इंडेस एप्लीकेबल। समझ में आता है ये? हाँ, अभी इसका आंसर कैसे लिखोगे? अपने मन से। हाँ। अर्नव, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? टाइप करके चैट में भेज। अच्छा, पीपीटी दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। यही सवाल था ना? सबसे पहले तो रोड मैप लिखना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2016 से क्या क्या एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2017 से, बराबर है। फिर हम बोलेंगे कंपनी है लिस्टेड है, बराबर है, उसको 1 अप्रैल 2016 से तो नहीं होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से रिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनी बी अनलिस्टेड है, ना 16 में एप्लीकेबल होगा ना 17 में होगा, क्योंकि उसको एप्लीकेबल करने के लिए 250 करोड़ या उससे ज्यादा का नेटवर्थ लगेगा। इसका -600 है, तो इसको कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा इंडेस, इसको एएस ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई टेंशन, ये याद रहेगा, खुद से लिख लोगे। तो क्या करोगे? अच्छा, कॉपी पेस्ट करोगे? हाँ, मतलब कॉपी कर।
Arnav, RRBs are treated as banking companies only. They are not treated as other companies. That is number one. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंड एएस एंड शेड्यूल 3 है तो इंड एएस प्रिवेल होगा. ये शेड्यूल 3 खुद लिखता है अंडर द जनरल नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन कि भाई अगर किधर भी कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई इंड एएस कुछ और बोल रहा है और मेरा प्रेजेंटेशन कुछ और है तो यू फॉलो इंड एएस. फॉलोइंग इंड एएस इज एज गुड एज फॉलोइंग शेड्यूल 3. अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? प्रॉब्लम बराबर है. क्वेश्चन 2. कंपनी बी इज अ लिस्टेड कंपनी कवर्ड इन फेज 2 ऑफ इंडियाज रोड मैप. मतलब 1 अप्रैल 2017. Company A is an unlisted entity having net worth of less than 250 crores and holding company of B. Company D is unlisted entity and holds 25% in company B. That is, company D is an investor of company B, has a net worth of less than 250 crores. Company C is a fellow subsidiary of company B, that is subsidiary of holding company A. Whether Ind AS is applicable to company C and company D. अपन डायग्राम बना लेते हैं, अच्छा पड़ेगा, है ना. बी लिस्टेड है, बराबर है. इसको 1 अप्रैल 17 से इंड एस एप्लीकेबल है. यहां तक बराबर है. कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड एंटिटी विच इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी. मतलब ऐसा, बराबर. बड़ी अनलिस्टेड है और इसका नेटवर्क भी ज्यादा नहीं है, बराबर है. कंपनी डी इज अनलिस्टेड एंटिटी एंड होल्ड 25% इन कंपनी बी. There is company D, मतलब D is an investor and B is an associate for D. फिर बोलता है कंपनी C is a fellow subsidiary of B. fellow subsidiary मतलब A ने बड़े बड़े काम किए हैं, B के साथ C भी है. अब B लिस्टेड है इंड एस, उसको एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 17. तो ऑब्वियसली B के पेरेंट को कोई ऑप्शन नहीं, इसको भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, बराबर है. क्या डी को होगा? ही इज एन इन्वेस्टर, उसको नहीं होगा. क्या सी को होगा? नहीं होगा. लेकिन लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कंपनी ए जब सीएफएस बनाएगा वो इंड एएस के बेसिस पे बनाएगा तो उसको सी सी एएस फॉलो करेगा. लेकिन जब उसको ए को डेटा देना पड़ेगा वो डेटा इंड एएस बेसिस देना पड़ेगा. मतलब सी के पास दो ऑप्शन है, या एएस फॉलो करके इंड एएस वाला डेटा दे या वॉलेंटरीली इंड एएस फॉलो करे. हेलो, बराबर ना. यस, डी के परस्पेक्टिव डी एएस ही फॉलो करेगा, एएस फॉलो करेगा, डी सीएफएस प्रिपेयर करेगा, सीएफएस प्रिपेयर करेगा तो उसको बी से एएस वाला डेटा लगेगा. एएस वाला डेटा लगेगा तो या तो बी से वो एएस वाला डेटा लेके कर दे या कंपनी डी भी वॉलेंटरीली इंड एएस फॉलो करे. हेलो, तुम अगर ऑडिटर होते तो क्या सजेस्ट करते कंपनी सी को? इंड एएस. और डी को? डी को? डी को एस. डी को एस. इंड एएस. कोई रीजन डी को इंड एएस के लिए? कहाँ लिस्टेड है? बी लिस्टेड है. हाँ तो
तो डी से बी से एएस वाला डेटा मंगा लेंगे, इंडेस से। मतलब ये कहाँ से आया, इंडेस से ट्रस्ट बढ़ता है, ये कहाँ से आया? इंडेस इज मोर एडवांस फ्रेमवर्क इसलिए। बट वो एडवांस फ्रेमवर्क समझता तो है नहीं लोगों को, ऐसे ही बोल रहा हूँ। फ्रेमवर्क एडवांस होने से क्या होता है, समझना भी तो चाहिए। प्रैक्टिकली पूछ रहा था ना मैं। कुछ नहीं है, डिटेल नहीं दिया तो कुछ नहीं, ऐसी है। इंडेस बोलेगा क्यों? टर्नओवर तो है ही नहीं बेटा, नेटवर्थ है। अभी से शुरुआत कर देते हैं, आगे आगे जाके तेरा फीस बढ़ेगा, अभी से ही बढ़ा देते हैं वैसा। तो आज भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो जो आज करना है वो बाद में करेंगे। अभी करना बैठेगा तो मेरे को पता, रात को ऐसा पढ़ाई करने बैठता है तो ऐसा पढ़ लेता है, नींद आता रहता है तो भी, या बुक बंद करके सो जाता है, तो बाद में करेंगे। जितना होता उतना मतलब बंद करके सो जाता ना फिर। वहां ये नहीं सोचता कि बाद में भी पढ़ना तो पड़ेगा, अभी पढ़ लेता हूं मैं। क्या वही कंपनी, मैं ही कंपनी डी है, मैं ही बोल रहा, बेटर कैसे है बता ना मेरे को। एक बेटर मेरे को समझता है तेरा फीस बढ़ जाएगा, बाकी बेटर कैसे है? ब्लू टी शर्ट वाले ने कुछ तो बोला। नो कमेंट्स, हाँ। सोच के बताएगा, क्लाइंट के साथ ऐसा बात करेगा, स्टोरी खत्म हो जाएगा। हाँ, फॉर कंपनी सी तो हम बोल ही सकते हैं कि दोस्त तू इंडेस कर ले। हाँ, तकलीफ कम। हाँ, क्योंकि ए भी इंडेस पे, बी भी इंडेस पे, तू भी इंडेस पे चला जाएगा, चीजें बहुत प्रॉपर हो जाएगी। कंपनी डी को इंडेस करने को बोले या ना बोले डिपेंड करता है बी से कितना स्विफ्टली एएस वाला डेटा आ सकता है। बी से कितना स्विफ्टली एएस वाला डेटा, अगर बी से स्विफ्टली एएस वाला डेटा आ सकता है तो डी को काय को भी मस्ती करने को बोलने का। तो तू चलते रहना है, जो चल रहा है तेरा सब बराबर ही तो है, काय को अभी तू मस्ती कर रहा है? तेरा खाली सीएफएस का एक पार्ट के लिए। एक कप दूध चाहिए तो भैंस नहीं खरीदते। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। बट ये कहावत लोगों को समझ में नहीं आती है। इट इज एप्लीकेबल, इट हैज ह्यूज एप्लीकेबिलिटी, लेकिन जाने दो। यही क्वेश्चन था। अगेन ये वाला पार्ट तो, पहला वाला रोडमेप वाला पार्ट तो वही लिखना पड़ेगा। यस। एंड देन इधर हम बोलेंगे बी को 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है, देयरफॉर ए जो उसका पेरेंट कंपनी है उसको भी उसका स्टैंड एलोन और सीएफएस इंडिया से बनाना पड़ेगा। But Ind AS criteria does not extend to fellow subsidiary. Therefore, C is not required to follow Ind AS just because it is subsidiary of a company which follows Ind AS. C can continue to follow AS. However, C Limited will have to submit Ind AS based financial statement to A for facilitation of CFS. In case of D, D is an investor of B. It is not an associate of B. D itself does not satisfy any criteria. Hence, it can follow AS for preparation of his standalone and CFS. Further, D will require B to submit AS-based financial statement to D to facilitate consolidated financial statement of D. बराबर है? याद रहेगा? हाँ, तुम रहेगा, लिख लोगे खुद से, लिख लेगा बाद में याद रहेगा।
ये फर्स्ट पार्ट तो इफ यू वांट यू कैन से सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का, वापिस उसी पर कॉपी करने की जरूरत नहीं, से सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का एंड देन मेन लिखो। समझेगा ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, वो मार्क करके लिखना बराबर से, नहीं तो मालूम पड़ा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा, हाँ खाली रोड मैप, यहां से शुरू करो।
मैंने कितना किस चुका हूँ हर जगह। सबने कंप्लीट कर लिया है? यस, ओके। चलो गुड। Online students have a better viewpoint than what you all provided. Better viewpoint. तो टेक्स्ट बुक में जो था वो सब खत्म हुआ। एडिशनल पार्ट जो हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना पड़ेगा, फ्रेमवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रेमवर्क? देखो, कौन सा भी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस होता है ना, जहां आप स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हो, वो स्टैंडर्ड क्रिएशन के पहले फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। ये जो क्रिएट कर रहे हो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वाई। सो आपके पास एएस का सेट है 1 से 29, देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर एएस। आपके पास इंड एएस का सेट है, टोटल कितने स्टैंडर्ड्स? स्टैट्यूटरीली 39, सिलेबस में 35, बराबर। उसके लिए भी फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, जहां कुछ चीजें फ्रेमवर्क में लिखी गई है। फ्रेमवर्क इज जनरल गाइडलाइंस, general guidelines. Ind AS would be the specific guidelines on the specific issues. कभी कभी ऐसा होता है कि Ind AS में कुछ टर्म्स, कुछ चीजें क्लियरली डिफाइन नहीं होती। तब हम, अगर Ind AS में क्लियरली डिफाइन नहीं है, तब हम फ्रेमवर्क का हेल्प लेते हैं। हम फ्रेमवर्क में देखते हैं क्या वैसी चीजें डिफाइन की गई है, और अगर डिफाइन की गई है तो हम फ्रेमवर्क का डेफिनेशन यूज करते हैं, प्रोवाइडेड Ind AS में वो डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। Ind AS में डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, if we speak about items in financial statement, so items in financial statement can be categorized as 5 items in financial statement. From a P&L perspective, income and expense. From a balance sheet perspective, asset, equity and liabilities. बराबर है? Yes. Now, word asset तो कितनी बार सुना है ना हमने? कितने स्टैंडर्ड में वर्ड एसेट यूज होता होगा ना? हाँ, पीपी वाले स्टैंडर्ड में एसेट आता होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
इंटेंजिबल एसेट वाले स्टैंडर्ड में आता होगा एसेट। हाँ, तो ऐसा वर्ड एसेट तो कितने जगह पे आता होगा, इन्वेंटरीज के अंदर आता होगा। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एसेट? हाथ ऊपर करके बराबर से बताओ। हाँ, जिसको आंसर आता, अभी कोरस में बात मत करो, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं। वन। आंसर मैंने बोला नहीं, बोलना है, रुको। वन। अभी ब्लू टी शर्ट वाला बोल भी नहीं रहा है, हाथ तो ऊपर कर। मैंने बोला तेरे को आंसर देने को, मैंने हाथ ऊपर कर, तू डायरेक्ट नेक्स्ट पे चला जाता है रे, तकलीफ होगा आगे जाके। हाँ, दो, तीन, चार। चार लोग बोलता है एसेट का डेफिनेशन, कुछ ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो भी ऐसे ऐसे को हाथ ऊपर बोलू नहीं बोलू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चार लोग ने हैंड्स अप किया है। देर आर सम पीपल हु हैव आल्सो गिवन ऑनलाइन आंसर, वो बाद में देखेंगे। विल फर्स्ट गो टू मैडम। हाँ मैडम बोलो। समथिंग विच वी, समथिंग विच वी acquire or develop which will generate future economic benefit. Okay. So madam, can we say कि every CA firm is developing a article clerk, trying to develop that article clerk from a crude rock to a diamond. So an article clerk is a asset to CA firm. सोच समझ के जवाब देना. So article clerk will provide monetary benefit. No, if a CA firm puts an article clerk to a client place for 10 days, he will bill for those 10 days at a rate of 10,000, 15,000 rupees per day. आर्टिकल क्लर्क का वो रेट से बिलिंग होता है, आर्टिकल क्लर्क को नहीं मिलता है. There is a difference. There is a difference. I hope you understand. तो मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तभी तो वो डेवलप करता है तुम्हारे जैसे लोगों को, नहीं तो जिसको पेरेंट डेवलप ना कर सके. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैन वी से आर्टिकल क्लर्क इज एन एसेट फॉर अ सीए फर्म? फिर आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो मैंने वही बोला, मतलब डेफिनेशन को थोड़ा सा. हाँ तो सोचो. हाँ, हाँ ब्लू टी शर्ट बॉय. Anything that generates income to entity is, anything that generates an income to an entity is an asset. You as an article clerk is generating income to your CA firm. तूने तो बोला एनीथिंग दैट जनरेट इनकम, तेरे डेफिनेशन में तूने भी ओनरशिप का बात नहीं किया. मैं तो तेरे डेफिनेशन के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं. उसमें एसेट के डेफिनेशन में वापस तू एसेट ही यूज कर रहा है. क्या बोलो? थिंग. बोलते जो सुन रहा हूं मैं. क्या बोला है, कुछ समझ में आया? क्या बोला था इसको? पीछे देख, पीछे लोग कुछ हाथ जोड़ रहे हैं. ओके. ओके, इधर कोई. हाँ हाँ मैडम. So according to you, inventory is not an asset.
It is not an asset. सुपर, बहुत सिंपल है. डेफिनेशन ऑफ एसेट बहुत सिंपल है. डेफिनेशन ऑफ एसेट शुड सेटिस्फाई 3 criteria. It should be a resource within the control of organization from which future economic benefit should flow to the organization. Bas. Anything which satisfy all the 3 is an asset. You, for your CA firm, from business perspective is an asset, but from accounting perspective is not an asset. You are a resource. You are generating future economic benefit, but you are not controlled by your CA firm. बोला सर क्या बोल रहा है? सर कंट्रोल भी करता है. सर ऐसा मत बोलो, कंट्रोल भी करता है. So you need to understand, when we talk about control, we are talking of कि वो सिर्फ ये कंट्रोल करता है कि तू कितना बजे आएगा और तू कितना बजे जाएगा. बाकी वो तेरे पे कंट्रोल करता नहीं है. तुम सब वो 3 साल वाले आर्टिकलशिप पीरियड वाले हो, जहां तुम्हारे पास फैसिलिटी है. फर्स्ट 1 ईयर में तुम उसको छोड़ के जा सकते हो. वो कितना भी रोके मत जा, प्लीज. तुमको अगर जाना है तो तुम जा सकते हो. तुमने किधर और मर्जर प्लान कर लिया तो तुम बोलेगा अभी इधर रह के फायदा, इधर जो भी होगा वो मजे वाला नहीं होगा. मजा वाला तो और किधर ही है. क्या ADI बराबर ना? हाँ बोलता है. हाँ. So for all practical purposes, you need to understand one thing. Anything which is resource within the control of entity, future economic benefit flow is an asset. And it is applicable to any asset. Fixed होवे, current होवे, कुछ भी होवे. जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो एसेट नहीं. उसी तरह लायबिलिटी, उसी तरह इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, फ्रेमवर्क सब कुछ डिफाइन करता है. फ्रेमवर्क सब कुछ डिफाइन करता है. तो कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड में किधर वर्ड इनकम आ गया, किधर वर्ड एक्सपेंस आ गया और उसका डेफिनेशन उस स्टैंडर्ड में नहीं है, तो मैं कहां से देखूं उसका डेफिनेशन? यू टू कम टू फ्रेमवर्क. समझ में आता है? हेलो. फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन करना है मुझे, तो डिस्कशन आज नहीं हो पाएगा. तो यहां हम क्लोज करते हैं, लेकिन यहां हम क्लोज करते हैं विथ होमवर्क टू यू ऑल. क्या टू यू ऑल? होमवर्क. तुम्हारा पहला होमवर्क होगा शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट एंड P&L फॉर्मेट तुम्हारे वॉल्यूम 1 में है. देखो वॉल्यूम 1 है क्या तुम्हारे पास? ये तो 2 लाया रहेगा. लोगों के कॉन्फिडेंस की तो बात ही इतनी निराली है ना. है वॉल्यूम 1? अगर किसी के पास वॉल्यूम 1 है तो देखो लास्ट में अपेंडिक्स करके रहेगा. है अपेंडिक्स करके कुछ? कि 2 में अपेंडिक्स है? किस में? देखो 1 में 2 में. मेरे हिसाब से 1 में होना चाहिए. है 1 में? इतना टाइम है? कौन से पेज नंबर पे? 305 पे अपेंडिक्स स्टार्ट होता होगा. बैलेंस शीट कौन से पेज नंबर पे? 305 पे. और P&L कौन से पेज नंबर पे? 3-4 पेज घुमाना पड़ेगा, इमीडिएटली नहीं होगा. हाँ तो ज्यादा घुमा दे. 305 और 322 ये 2 पेज नंबर पे बैलेंस शीट और P&L है. मैं चाहता हूं जब आप नेक्स्ट लेक्चर आओ इसको अच्छे से देख के आओ. इसको अच्छे से. कुछ लोग बोले सर हम तो ये रोज देखते हैं, ऐसा हमको देखने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट लेक्चर गलतफहमी दूर कर देंगे, लेकिन अच्छे से देख के आना है. एटलीस्ट तुमको बैलेंस शीट के अंदर में कुछ आइटम बोलेगा तो हाँ ये था तो सही, समझा कुछ भी नहीं, लेकिन था तो सही. समझ के आने को नहीं बोल रहा हूं. क्या बोल रहा हूं? देख के आने को. उतना करोगे ऑल ऑफ यू? हाँ तो अभी के लिए इतना ही करो, बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर बताता हूं.
Thank you very much. We'll close for the day.